we are going to discuss the chapter federalism. It is basically our chapter 2 of civics. First of all, we will understand the origin of word federal, then we will understand the word ism. Basically, the federal word has been derived from a Latin word that means fidus. It means agreement. What it is? Agreement. Means federal word is, we are revising it again. Federal word is derived from the Latin word which means fidus and it means agreement. And now we will discuss the second part of this word, that is ism. Whenever with any word, this word basically ism comes, it becomes what? A kind of tradition, or in Hindi better we can say that is called vad. If you don't get the word vad, leave it. I am coming with some more examples that will help you in relating the word ism. Like you all would have listened the word nationalism. You all would have listened the word patriotism. You all would have listened the word communism. These all words, whatsoever we are using, has a detailed meaning or become a tradition, parampara, whatsoever we can call, with the word that is ism. What it is? Ism. Any issues? No. Now, before studying the topic federalism, we will discuss what is federalism, what is federalism, why there is a need of federalism, why there is a need of federalism. Now, how federalism is practiced, how federalism is practiced. So any topic, कोई सा भी टॉपिक अगर हमको पढ़ना हो, तो अगर बात करें तो these all words play a dominant role, like what, why, how, when. So these all basic questions first we will discuss, and then we will move deep into the chapter and we will analyze what is federalism. Is it good to call ourselves a federal state? Now, the word I have said to you right now is state. You would all have listened, state. क्या मैंने बोला आपको? वर्ड है हमारे पास state. एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन क्या है? Is India a state? Is Delhi a state? Is Tamil Nadu a state? These all are the questions. First of all, we will discuss the concept of state. What we will discuss? Concept of state. अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें हम, तो जो स्टेट वर्ड है, कौन सा वर्ड? स्टेट. बेसिकली अगर हम इफ वी गो पास्ट इन द 16th century और 15th centuries, जो स्टेट वर्ड है दैट इज फ्रॉम द बेसिकली ग्रीक वर्ड. उससे पहले क्या होता था? एक सिटी स्टेट. फिर जाके क्या कौन सा कॉन्सेप्ट आया? तब कहें तो स्टेट. अब पहले एक बार स्टेट को देखते हैं कि स्टेट के लिए क्या क्या कंपोजिशन चाहिए होगा, तब हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट आखिर है तो है क्या. आई थिंक समझ में आ रहा होगा. अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पिन करें, बताएं कि आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, दिस इश्यूज. पहले चलिए देखते हैं स्टेट. स्टेट के लिए चार कंपोनेंट की जरूरत
कितनों की? 4। फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन। तो कहने की जरूरत है, इंडिया के पास पॉपुलेशन है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें पॉपुलेशन के बाद, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वो चाहिए गवर्नमेंट। क्या चाहिए? गवर्नमेंट। तीसरा जो एक फैक्टर है वो है एरिया या टेरिटरी। कौन सा वर्ड है? एरिया और टेरिटरी। चौथे नंबर पे जो वर्ड है कौन सा है? सोवर्निटी। कौन सा? सोवर्निटी। द फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन, द सेकंड वन इज गवर्नमेंट, थर्ड वन इज एरिया, फोर्थ वन इज सोवर्निटी। रिवाइज करेंगे एक बार फिर से। पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, एरिया, सोवर्निटी। सो इसके बाद कैन वी से दैट इंडिया इज अ स्टेट? यस, वी कैन से दैट इंडिया इज अ स्टेट। कह सकते हैं। नॉर्मल टर्म में स्टेट वर्ड आपको बेसिकली कहां दिखेगा? तो स्टेट वर्ड यू विल कम एंड सी इन योर सिविक्स बुक्स। सबसे ज्यादा आपको मिलेगा कौन सा वर्ड? स्टेट। तो कोई दिक्कत? अब later on in the discussion we will discuss different parts, different types of federalism. First of all एक बार आप फिर से देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने। फेडरलिज्म देखा। फेडरलिज्म कहाँ का अग्रीमेंट, मतलब कौन सा वर्ड है? फीडर्स वर्ड है। फीडर्स वर्ड का क्या मतलब हुआ? अग्रीमेंट। फिर हमने देखा कि इंडिया स्टेट है कि नहीं है। अब वो डिफिनीशन देख रहे हैं किसका? फेडरलिज्म का। फेडरल किसका? एकदम ध्यान से समझिए। टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोला मैंने? एक सेक्शन इसका, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक क्या? टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोला मैंने? टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा ईच लेवल। विच लेवल? ईच लेवल हैज इट्स ओन jurisdiction कहें या ऑटोनॉमी। क्या कहेंगे? ऑटोनॉमी। तो क्या डेफिनेशन क्या है हमारा? टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरा क्या है? ईच लेवल हैज इट्स ओन jurisdiction। एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ईच लेवल हैज इट्स ओन jurisdiction। क्या बताया मैंने? टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, each level has its own jurisdiction। यहां तक कोई दिक्कत? 5 मिनट हो गया।